Hello everyone, in this video we will learn how we can get high paying clients, and the approach I'm going to tell you will also help you if you want to get a great job. So let's get started. My only and my favorite, my first strategy is free work strategy. Now by its name, it's clear that I am telling you to do work for free. बिफोर यू से टू मी दैट शिशिर फ्री वर्क नहीं करना चाहिए, फ्री वर्क मत करो क्योंकि लोगों ने तुम्हें बोला है कि कुछ पैसे मिलना चाहिए, तुम्हारी कुछ वर्थ है. बट व्हेन यू आर बिगिनर, और एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स, बट जो ट्रिक्स तो नहीं कहूँगा, जो प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो एडवांस फ्रीलांसर के लिए, एडवांस राइटर के लिए भी हेल्प करेगा. लेकिन वो एडवांस वाले का जो ईगो होगा कि आई एम एडवांस, क्योंकि इफ यू आर एडवांस इट मीन्स यू मस्ट हैव सम क्लाइंट्स, बट यू आर सेइंग दैट ओके आई एम एन एडवांस मतलब कि थोड़ा एक्सपर्ट राइटर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, then it is also, isn't it obvious that you must have clients as well? But you do not have clients, then what you need to do? So if you can keep your ego aside, then this video may help you. And if you are beginner, then just listen me. जो भी इससे पहले सुना है कि प्री वर्क नहीं करना चाहिए, इतनी वर्क होती है, कुछ पैसे ले लो, then please hear me out, and at the end तुम ही डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है. Do I want to do work for free or do I want some money? What I am doing here. So let's get started. So basically strategy है क्या, अभी हम स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू कि जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर अ कॉपी राइटर एंड यू वांट टू राइट ईमेल्स फॉर कोचेस एंड कंसल्टेंट्स. सो यू विल फाइंड कोचेस, और उन कोचेस को फाइंड करके तुम उनकी प्रॉब्लम्स देखोगे, क्या तुम बढ़िया उसमें कर सकते हो, वो फाइंड करोगे, एंड फिर उस कोच को भेजोगे सजेशन अपने की, यू नीड टू मेक दिस चेंजेस और आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग. ये छोटा सा ओवरव्यू है, आई नो मैंने जल्दी से बता दिया, बट अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. बट अभी जितना भी बताया उससे ये समझ लो कि आई एम आस्किंग यू टू डू द फ्री वर्क, एंड व्हाई अभी बताता हूँ. ओके, नंबर 1, it's easy to stand out in the noisy market. Do what no one else is doing. I have even made some notes for you guys that do what no one else is doing. अब कौन क्या ऐसी चीजें जो सब नहीं कर रहे हैं? Because everyone asking for the client, asking for the money. Now this is not how the business works. This is not how you should play the game. When you ask that I need to make money, or when you say that, okay, I need to make money out of this person, you have wrong mindset. Now what you should ask, don't ask how to make money from this person. Ask yourself that how I can make money for this person. You hear me? That don't ask that how to make money out of this person. Ask, how can I make more money for this person? Because if you do that, you will make money. But you won't just make money. You will build your reputation, you will build your brand, and you will stand out in the market. So basically यहाँ पर हम समझते हैं कि मार्केटिंग वर्ड का क्या मतलब होता है. द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सुनी हो या कभी समझ ना आया हो, या सुन तो रखा है कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बट व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing in simple word is making people aware that your product exists. And when you are going for the clients, what you are trying to do? You are trying to market yourself, meaning you are trying to tell the people, look, I exist, and become aware of me. And why would they care that you exist? Because you exist to make them more money. That's why they care. And I read somewhere that the great marketing strategy is just to care about the people. So you exist to make them more money. That's why they care. And you market yourself, meaning you make them aware that, look, I exist, and they come to you. This is called marketing yourself. Now, as a product, you are the product, and you are the salesman of the product, which is you. It means you are the salesman and you are the product. You are selling yourself. You're marketing yourself. Now, how you are going to market yourself? Meaning, how you are going to tell them, look, I exist to make you even more money. How you going to do it? By just words. Okay, by just words, they may believe in you that, okay, you can do it. But why should I listen to you? Why should I care about you, what you are saying?
So what you do? एंड यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, क्या कि बहुत सारे डीएम्स ऐसे आते हैं, इवन आई हैव रिसीव्ड दोस काइंड ऑफ डीएम्स की टेल मी समथिंग, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, क्या मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज, आई एम सो मच हार्ड वर्किंग. समटाइम्स थोड़े से टची और इमोशनल मैसेजेस भी हो जाते हैं जो कि मुझे तो नहीं मिले, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग कि अब मेरे घर में बहुत दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज टेल मी कि मैं क्या कर सकता हूँ. एंड आई अंडरस्टैंड गाइस कि शायद वो इमोशनल सिचुएशन आपके साथ है या नहीं है, और वो जो पैसों कमाने की जो आपकी इच्छा है और जो आप पूछ रहे हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका डिसिप्लिन है, आपका कॉन्फिडेंस भी है, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. हाउ, क्यों नहीं ऐसे काम करती? बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि मुझे बताओ कि क्या काम कर सकता हूँ मैं, प्लीज टेल मी आई कैन हेल्प यू, देन तो कर क्या रहे हो? उसका काम और बढ़ा रहे हो कि अब वो बैठेगा और सोचेगा कि यार इसको क्या काम दो. क्यों सोचेगा वो? वाई वुड ही केयर अबाउट यू? क्यों ही सोचेगा वो बैठ करके? तुमने तो उसका काम और बढ़ा दिया. वट यू नीड टू डू इज कि तुम उसकी अच्छे से रिसर्च करो. नाउ वी लर्न अबाउट दिस थिंग कॉल्ड मार्केट रिसर्च करो, उसकी कंपटीटर रिसर्च करो, उसके कंटेंट को रिसर्च करो, उसके ईमेल्स को रिसर्च करो. एंड सिंस आई एम स्पेसिफिकली, ये हर कहीं काम करेगा, इवन इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, डिजाइनर, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू द कॉपी राइटर्स एंड ऑनलाइन राइटर्स. सो फिगर आउट की राइटिंग में उसकी क्या कमी, एंड सिर्फ कमी बताओ ही मत, उसे करके ही दे दो. फॉर एग्जाम्पल उसकी ईमेल्स में कमी है, फॉर एग्जाम्पल वो न्यूज़ लेटर लिखता है, उसके न्यूज़ लेटर में कमी लग रही, देन राइट अ न्यूज़ लेटर फॉर हिम. टेल देम दैट, टेल देम ऑन डीएफ दैट आई एम विलिंग टू प्रोवाइड यू free newsletter issue just to prove my abilities to you so that you can trust me and we can do business together. If you like it, we can work. If you don't like it, it's fine. Who will say no to this? Many people may say no, but there would be some people that say, okay, I really appreciate the offer. I really appreciate that you are willing to do something. And many times just write the newsletter and just send them. Yeah, I have written a newsletter issue for you. Can I send it to you? What do you think? And he will say, you wrote a complete newsletter for me. You are caring. So what's the best way to make your prospect care about you? By caring about him. छानी की कि तुम उसकी केयर करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तभी वो तुम्हारे बारे में सोचेगा. So if you have written a newsletter or you have recorded a video कि उसको बताते हुए कि यहाँ आपके कंटेंट में कमी है, या फिर अगर आप वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटिंग की कमी है, स्पेसिफिकली राइटर से बात कर रहा हूँ तो राइटिंग में कमी है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, इसको बेटर कर सकते हैं. एंड यू आर सेंडिंग द वीडियो, यू आर सेइंग कि आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो टेलिंग कि कहाँ पे मैंने सजेशंस आपको दिए, कहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती है, यू आर टेलिंग हिम. और तुम उससे पूछते हो क्या मैं ये वीडियो आपको भेज दूँ, एंड दे विल से ओके सेंड इट यार, सेंड इट. वाई दे विल नेवर से नो यार, क्योंकि बिकॉज तुमने इतनी मेहनत करी है उनके कंटेंट में. यू कैन इवन राइट इन योर मैसेजेस इन while outreaching that I spent 20 hours, 10 hours consuming your content and finding the problems, and these are the some errors which I found and maybe you should look into it, because they need people like you. तुम्हें ऐसा लगता है when you are beginner, because I have also felt this thing कि why would someone give me work, मुझे क्यों ही कोई काम देगा, even if my skills are good or not, but क्यों काम देगा, दे देते हैं कि इतना पैसा मिल जाता है क्या. बट द थिंग इज मिलेगा, बिकॉज दे वॉन्ट ग्रेट पीपल. कोई भी बिजनेस खड़ा होता है इट्स बिकॉज ऑफ द टीम. वो टीम स्पिरिट उन लोगों से बनता है जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, जो जो क्रिएटिव होते हैं, जो विजनरीज होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं. यू आर दैट. तो उसको समझो कि दे आर नीड ऑफ द ग्रेट पीपल. ना यहाँ पे फिर से मैं मार्केट वाले उस पर ही एग्जाम्पल आता हूँ कि दे आर इन द नीड ऑफ द पीपल, गुड पीपल, बेटर पीपल. Now the question is, when I say that you need to market yourself and you are the product. Now let me tell you this one thing. And I ask you that suppose you are building any product. So that product should be great in itself. The product should be helpful. It's not the marketing which makes the product helpful. It's the product itself. You have to put hours and hours and hours building that product better and better. Similarly, when you are your product, you have to build yourself. You just try to market yourself too much. Meaning you just care about outreaching. You just care about the client's work. You don't care about upskilling yourself. I have seen a lot of copywriters, including my past self, just looking for the clients, just trying to outreach and not providing any free work, not providing my abilities and the proof of my abilities, just outreaching. Now that's not how business works. So what I'm trying to do here is that you have
you also have to keep building yourself. It means you have to keep making the product, which is you, better and better each day. Because that's how, when you will market yourself, you will be known as a leader, as a person whom with whom people would love to work. So ये पूरी स्ट्रैटेजी का कोर है, इसको समझना बहुत जरूरी है. वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, कोल्ड ईमेल्स और ये इट ऑल कम्स लेटर. दिस पार्ट कम्स फर्स्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट हैं तो खुद को बनाते रहो बेटर. Then you market yourself. And how you market? By providing them the proof that, look, I exist and I can make you more money. And if I can make you more money, and if you are making him more money, he will pay you. He will pay you. वो बड़े प्यार से कहते हैं ना, बड़े प्यार से पैसा दे. But you have to become that product. So first challenge is not to find the client. First challenge is build build yourself, build your product, which is you. Then you market yourself. How you market? By providing the proofs that you can do this. You can make them money and you are worthy by providing the free work. I hope this may sound like a mindset thing, but it is actually mindset thing plus the core basis of finding the clients or attracting the clients. I won't even use the finding the clients. You will attract clients. Now, I hope you are understanding this whole scenario. You may ask me कि अगर मैं free work करूँगा मुझे काम तब भी नहीं मिला, then what? Congratulations, you have portfolio, you have experience, you applied your knowledge to a real life business. You have case studies that, look, I did this and I found this problem. You got experience. You are a beginner. You got all of these things. And if you are advanced, then तो फिर मतलब कि advanced में कह रहा तो आपकी मतलब skill proficient है अगर आप खुद को advanced कह रहे हैं तो. And if you do free work, he will definitely hire you. अगर नहीं कर रहा है तो फिर मतलब कि skills proficient नहीं है, कहाँ करनी है आपको figure out करनी है. And since you are advanced, you will figure it out. So इस चीज़ को मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और मुझे कहीं पे भी ये चीज़ मिली ही. I also do this thing. I still do free work because I want to prove myself. I want to experiment myself. And I also got some clients as well doing this thing. So I found that I should share this thing because इससे पहले शायद मैं आउटरीच भी नहीं करता था. I always focus on upskilling. थोड़ा बहुत आउटरीच कर लिया. फिर एक टाइम आया कि मैंने बहुत ज़्यादा आउटरीच करा. फिर समझ आया कि अपस्किलिंग और आउटरीचिंग इट शुड गो हैंड इन हैंड. मतलब कि एक साथ चलते रहना है. यू आर आउटरीचिंग एंड यू आर अपस्किलिंग. अपस्किलिंग मत भूलना. इट मीन्स अपने आप को बेटर करना मत भूलना. सिर्फ मार्केट करते रहते हो, वो भी सही से नहीं करते हो. सही तरीका भी बता दिया हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, और ये भी बता दिया कि करना कैसे है, और जो तुम हो यानी कि यू आर द प्रोडक्ट, खुद को बेटर कैसे बनाना है. आई होप पूरी बात समझ आ गई हो. लेट्स सी. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन. आई ट्राई टू चेंज योर माइंड सेट. आई ट्राई टू चेंज वट यू थिंक. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसी तरीके की वीडियोस होती है उस पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलेज मुझे बड़े पसंद आते हैं कि मुझे स्टेप बाय स्टेप दे दो, मैं सब समझ गया हूँ. So I tried to write some steps which you can follow, which I followed, and it will work. I can get it. Step 1, find out what problems you are going to solve. If you are a writer, online writer, the problem are you going to solve? If you ask me what I do, I solve the problem of newsletter. I write newsletter for the coaches and consultant. I write educational emails which helps them sell their courses or any kind of digital product. That's what I do. So find out कि तुम exactly क्या problem solve करने वाले हो. And even if you are editor, designer, whatever you are, so find out what problems you are going to solve. Then step 2, create your own social profile on X, which is Twitter, Twitter and LinkedIn. So basically, why I am saying create a social profile? Because that's how you market yourself. You know, that's how you can outreach to the people and they can see, okay, this person is good, this person is doing good, and content should be there. अभी मैं आगे की स्टेप में बात करेंगे. फिर से बता दूं यार, फिर से बता दूं ये वाली चीज़. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. मैंने ये बोला है कि सोशल प्रोफाइल बना लेना. इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हो, बट इफ़ यू आर अ डिजिटल राइटर देन एक्स एंड लिंक्डइन वर्क्स बेटर.
मैं सिर्फ सोशल प्रोफाइल बनाना है कि कह रहा हूँ कि बैनर अच्छा हो, तुम्हारी फ़ोटो अच्छी हो और बायो ठीक हो और सही लोगों को फॉलो करा हो और सही तरीके का कंटेंट डाल रहे हो। अभी बताएंगे किस तरीके का कंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके अब पता करने लग जाओ हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन, हाउ टू ग्रो ऑन एक्स, फॉलोवर्स जमा करने लग गए हो 1,000 2,000 और उस पर खुश हो रहे हो। रिमेंबर द फॉलोवर्स is not cash. The likes you get, the comments that you get is not cash, is not money. And you are here to earn money by making those people earn more money. So मैं नहीं कह रहा लाइक्स कमेंट्स बुरे हैं, फॉलोवर्स बुरे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा फोकस खुद को मार्केट करने पर हो। ये लाइक्स की रेस में मत लग जाना, कमेंट्स की रेस में मत लग जाना, अपने कंटेंट को अच्छे बनाने की रेस में ही लगना। प्लीज़ उस चीज़ में मत फंस। फिर से प्यार, बहुत ऐड देखोगे, बहुत ऐसे वीडियोस देखोगे, कोर्सेज देखोगे, इतनी ग्रो कर लो फॉलोइंग, इतनी कर लो फॉलोइंग। आई हैव सीन पीपल जिनकी कितने 10-10 20-20 30-30 हज़ार फॉलोवर्स हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी। सो लर्न हाउ टू मेक मनी, लर्न अबाउट मनी, लर्न अबाउट पीपल, लर्न अबाउट हाउ टू मेक गुड कॉन्टेंट। दैट्स इट। जिस तरीके कॉन्टेंट तुम बनाना चाहते हो वो ध्यान रखो बस, और बस उन्हीं को अट्रैक्ट करो। डोंट अट्रैक्ट ऑडियंस, अट्रैक्ट बायर्स ऑफ योर सर्विस। दैट्स इट। जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है बस उससे ही बात करो। चमक दमक में मत पड़ जाओ मैं लाइक्स एंड कमेंट्स की दूसरों को देखता थी। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, जो कि मुझे लगता है पेनफुल है, क्योंकि लाइक्स कमेंट से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पैसों से तो चलेगा। और पैसों से तुम ग्रो भी कर सकते हो आगे अकाउंट को अपने। इवन यू कैन हायर योर टीम, जो अगर तुम्हें ग्रो करना ही है और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना है। बट राइट नाउ इफ यू आर बिगनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी, and you are doing, of course, not just money, the whole game in which money is an important part. Now, step 3 is write insight based content around the problem. Don't provide too much value. ये तो मेरे बहुत ही करीब है, because I did this mistake when I started कि I will provide value for free, because as as I read in this book, in books, and I was also inspired by Alex Hormozi. डैन को, मेरे ख्याल डैन को भी इस बात को इतना प्रमोट नहीं करता, बट एलेक्स रमोजी डज दिस मैनी टाइम्स एंड इट्स ओके, ही इज राइट। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट यू आर बिगनर, ही कैन प्रोवाइड वैल्यू फॉर फ्री बिकॉज ही हैज़ वैल्यू और ही हैज़ मनी, बट यू डोंट हैव मनी। तो वैल्यू मत प्रोवाइड करने लग जाना फॉर फ्री। रीज़न यही है कि मान लो किसी को, मैं सिंपल सा लॉजिक ये दूंगा कि हम किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्री, ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, अपनी सर्विस फ्री में दे रहा हूँ, सब फ्री में सिखा रहा हूँ, और फिर एक दिन मैं आके बोलूँ है यू हैव टू पे मी फॉर दिस थिंग, एंड दे विल भाई, मतलब कि यार अब तक फ्री में दे रहे थे वैसे कर दे रहे हो। कुछ पे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही करेंगे जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा कि हाँ आई शुड पे, अदरवाइज अदर पीपल से नहीं ऐसा हो जाए दिस। तो फिर मतलब कंसर्निंग होंगे। आई स्टिल रिमेंबर कि एलेक्स हर्मोजी का जो बैनर था यूट्यूब का, उस पर उन्होंने लिखा रखा था दैट आई हैव नथिंग टू सेल। एंड जब उन्होंने बैनर हटाया, उन्होंने उसका पोस्ट भी डाला था दैट आई स्टिल हैव माई बुक, जो कि मैं सेल करता हूँ, चाहे मैं बहुत कम पैसे में करता हूँ, बट मैं सेल करता हूँ। एंड द होल कम्युनिटी वॉज डिस्कसिंग इट कि कुछ तो शेडी चल रहा है, कुछ तो ये बेचने आएगा। बताओ, उस बंदे को ही कह रहे हैं कि दैट प्रोवाइडेड यू वैल्यू। सो बेसिकली यहाँ से एक आइडिया लेते हैं कि हमें वैल्यू प्रोवाइड, मतलब मैं नहीं कह रहा वैल्यू प्रोवाइड मत करो, मैं कह रहा हूँ डोंट प्रोवाइड टू मच वैल्यू, इतनी ज़्यादा वैल्यू मत प्रोवाइड करो। इनसाइट बेस्ड कंटेंट क्या है अराउंड द प्रॉब्लम, की जो प्रॉब्लम है जो आप काम कर रहे हो उसकी इनसाइट्स दो कि कैसे वो काम होता है या आपने कैसे वो काम करा। ये वो पूरे स्टेप बाय स्टेप मत समझो। तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोवाइडिंग यू वैल्यू। अब यू में से तुम तो वैल्यू प्रोवाइड कर दो। रीजन इज कि मेरा, अगर तुम लिंक्डइन और ट्विटर देखोगे दैट इट इज कम्प्लीटली फॉर कोचेस। इवन द बैनर से दैट एवरी बिजनेस शुड बी एन एजुकेशनल ईमेल बिजनेस। दैट इज माई मोटो, मतलब क्या कहते हैं सर, लाइन, मेन लाइन जो भी कहते हैं, स्लोगन, कुछ भी कैन। बिकॉज राइट ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन आई एम ट्राइंग टू सर्व द कोचेस एंड कंसल्टेंट ऑन इवन ऑन फेसबुक, but on YouTube I am trying to teach you what I learn. For example, how to get clients. I can't teach this thing to the coaches, right? I'm not providing value to the coaches. I'm providing value to the beginners so that they get started here. Well, this is not for the money right now. Of course, I will earn money. I will sell courses. I will okay, अंकुर वारिको की तरह नहीं बेचूंगा, but I will sell courses. I will sell the mentorship like 10-15 लोगों की सब, because I love teaching. So आने वाले टाइम में you're watching this soon वो आ जाएगा कि हम 10 मतलब
10 या 15 इतने जनों के साथ महीने 1.5 महीने में पूरा काम कर रहे होंगे प्रोफाइल पे, कंटेंट पे उसके, और हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट ही कैन स्टार्ट अर्निंग मनी. आई एम हैप्पी टू, I would be proud of those people अगर मेरी वजह से वो अपनी लाइफ चेंज कर पाए. एंड ऑफ कोर्स आई विल चार्ज, because I'm not here to just provide value. Like you, I'm here to make money. And so yeah, this is how I'm playing this YouTube game. But other than this, when you are when you are working for the client, don't provide too much value. Just provide insight-based content. So I hope you understand now. Now step 4, create the list of the people you can solve problem for. अब जिनके लिए तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उनकी लिस्ट बना लो. अब ये जो है ना, मुझे इतना रुलाया है इस चीज़ ने पिछले टाइम में, बिकॉज मेरे को नहीं आता मुझे समझ नहीं आता था कि उनको ढूंढूं कहाँ. मेरे सिंपली टारगेट ऑडियंस क्या थी, ये जो कोचेज एंड कंसल्टेंट है, उनके कुछ इन्फो प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, जैसे कोर्सेज हो, मेंटरशिप हो, कोई कुछ भी बेचने के लिए, उसके बारे में मैं ईमेल्स कुछ सेंस पे दे, पर मुझे लिस्ट बनाने ही नहीं आती थी. सो बट यू कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब. मुझे नहीं आई बिकॉज बहुत टाइम लगा समझने में, शायद आपको इतना टाइम ना लगे. यू कैन लर्न इट ऑन यूट्यूब. एंड अगर यूट्यूब पे ना भी आए तो देन मैं वही सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल कम अप विद द वीडियो की उसकी लिस्ट कैसे बनानी है, इवन द आउटरीच कैसे करनी है. स्क्रिप्ट में मैं इतना बिलीव नहीं करता कि एक स्क्रिप्ट फॉलो करो, बट आई विल टेल यू हाउ टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड देन स्टेप 5 इज फिगर आउट द लूप होल्स इन द प्रॉब्लम, जो कि हमने बात करी अभी कुछ देर पहले की. प्रॉब्लम फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम है उसकी. एंड स्टेप 2, डू दैट वर्क फॉर फ्री. जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अब वो सोल्यूशन ही सेल मत करो, पहले ही काम फ्री करके दे दो, बिकॉज फिर वो तुम्हें हायर कर ले. दिस इज द होल गेम. दिस इज एज सिंपल. बहुत आसान है, बहुत आसानी से खेला जा सकता है पूरा गेम अगर तुम इसी रूल्स के हिसाब से चल. ये भी पूरी एक वीडियो में सब कुछ बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग वीडियो हो गई. कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखूँ, बट इट वेंट लॉन्ग बिकॉज मेरी आदत है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की. कुछ लोग अच्छी कहते हैं इस आदत को, कुछ लोग बुरी कह देते हैं, बट आई रियली वॉन्ट यू टू टेक स्टेप टू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू गेट क्लाइंट. एंड आपको लग रहा है कि नहीं यार इफेक्टिव नहीं है, फ्री वर्क नहीं है, तो ठीक है मत करो. लेकिन जब जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो हार तक की एक बार ये भी ट्राई कर लेना. क्या पता जादू दिख जाए, क्या पता कुछ अच्छा फील होने लग जाए. बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग वर्क, जब फ्री वर्क करोगे तुम काम तो करोगे, अपस्किल तो करोगे, तुम्हें वहाँ तो मज़ा आएगा ही आएगा. तुम क्लाइंट से आउटरीच करना, मैसेजिंग तो सीखो, कैसे मैसेज करना है, बात करना है. क्या हो सकता है कॉल पे भी आओ, कॉल पे भी बात करो. एंड यू नेवर नो, यू विल, तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ उसकी हेल्प करना होगा, सब चीज़ अच्छे से कर रहे होगे, एंड यू विल हैव गुड टाइम. यू विल स्टार्ट enjoying the process, and when you will start enjoying the process, then the magic starts. Then you will get the client, then you will make the money. So basically इसको गेम तरीके से देखो, खेल कैसे खेलना है, रूल समझ लो, इंटेंशन साफ रखो, गेम प्लान रखो, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ो, एंड यू विल मेक मनी. तो आई होप ऐसी तरीके की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं. राइटिंग की वीडियोस, क्लाइंट कैसे लाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.